Hello everyone, once again I welcome you all. Now in this video lecture we will discuss the new topic, that is a resolution. Now what do you mean by resolution and where we use that resolution? In the previous video lecture we have discussed what do you mean by racemic mixture and what do you mean by racemization. So racemic mixture, it is nothing but it is the equimolar mixture of two enantiomers. That mixture is known as the racemic mixture. See, for example, this is the racemic mixture. This is the 2-butanol, this is the 2s-butanol, and this is the 2r-butanol. So both they are present in this solution in the equimolar amount, therefore it is a racemic mixture. And when we pass the plane polarized light through this racemic mixture, that racemic mixture will not rotate that plane polarized light in either of the direction, that is in the right direction or in the left direction. The plane polarized light will pass from the solution as it is in a straight manner. So that type of a mixture is known as the racemic mixture, and the process of formation of this racemic mixture is known as the racemization. Now अब देखो, अब ये racemic mixture बनता कहाँ है? So there are the number of reaction. कुछ रिएक्शन ऐसी है कि जिस रिएक्शन में मान लो ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी एक रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन में ये भी प्रोडक्ट बनेगा, उसके साथ उसका ये इनैंशोमर भी बनेगा. अब मान लो अगर उस रिएक्शन में दोनों ये प्रोडक्ट बन गए और एंड वी नो दैट इन केस ऑफ एंड इफ दिस टू आर दी इनैंशोमर ऑफ ईच अदर, अगर कोई रिएक्शन है उसमें ये वाला हमको प्रोडक्ट बनाना है और उसके साथ ये भी बन गया, सो बोथ आर द इनैंशोमर. अभी तो दोनों तो इनैंशोमर है. और नाउ वी नो दैट इन केस ऑफ द इनैंशोमर दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है. फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि वो लिक्विड रह सकते, दोनों भी सॉलिड रह सकते. मीन्स बोथ दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. अब अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर दोनों लिक्विड है, अगर प्रोडक्ट बन रहा है दोनों भी अगर लिक्विड है या दोनों भी सॉलिड है, तो प्रोडक्ट दोनों को सेपरेट करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. उनको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. क्यों? क्योंकि बोथ दे आर प्रेजेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि हमको अब ये अगर सेपरेट करना है तो इनको सेपरेट कैसे करें. मीन्स जो रासायनिक मिक्सचर जो बना है, जो रिएक्शन हमने की है, उस रिएक्शन में ये भी प्रोडक्ट बना और ये भी प्रोडक्ट बना, मतलब दोनों ही एंशोमर बने और दोनों भी इक्विमोलर अमाउंट में बने. अगर इसमें से अगर हमको ये वाला अगर सेपरेट करना है और ये वाला अगर सेपरेट करना है तो इसको सेपरेट किया कैसे किया जाए. सो टू सेपरेट द इनैंशोमर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, इन देयर प्योर फॉर्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज द resolution. So separation of the enantiomer. So how we can define the resolution? Resolution, it is nothing but it is the process where the separation of racemic mixture takes place in their pure enantiomeric form. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the racemic mixture, this is the one enantiomer, this is the another enantiomer, this one is the mirror image of this one. You can see here, if I place here the mirror, the CH2 will look at over here, CH3 will look at over here, and likewise these two group will be located over here. So these are the mirror image of each other and they are the enantiomer. So the process of separation of these two enantiomer from their racemic mixture, that process is known as the resolution. Now how we can separate these enantiomer? So there are the number of methods they are there available. The one is the mechanical method, second one is the chemical method, third one is the chromatographic adsorption, and fourth one is the biological method. Now in the university examination the definition is asked, that is what do you mean by resolution, and explain the chemical method of chemical resolution of enantiomer. So now let's we see the chemical method, how to separate the enantiomer from their racemic mixture. So this is the chemical method to separate the racemic mixture. And this separation, say for example, this is the R configuration, this is the N configuration, means this is the molecule having R configuration and this is the molecule which having the S configuration. मतलब ये है हमारा racemic mixture. ये वाला molecule उसका configuration R है, ये वाला molecule उसका configuration S है. And we know that in case of enantiomer, अगर दो इनैंशोमर है तो एक इनैंशोमर का कॉन्फ़िगरेशन रह सकता है आर, तो दूसरा वाला इनैंशोमर जो रहेगा दूसरा वाला उसका रहेगा यस. तो इसलिए इनैंशोमर दे हैव दी अपोजिट देयर कॉन्फ़िगरेशन, उनका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट रहता है. इसलिए यहाँ पे एक
एक इनैंशियोमर मॉलिक्यूल आर से इंडिकेट किया और दूसरा इनैंशियोमर मॉलिक्यूल एस से इंडिकेट किया हुआ है। और मान लो ये है रेसिमिक मिक्सचर, मान लो ये किसी रिएक्शन में बना हुआ है ये मिक्सचर, हमको चाहिए आर वाला मॉलिक्यूल जो कि हमें उसे सेपरेट करना है, और एस वाला हमें मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। और अगर हमको इसको सेपरेट करना है तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे केमिकल मेथड। नाउ इन केस ऑफ हाउ विल सेपरेट दैट टू इनैंशियोमर, अब इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? सो दिस सेपरेशन ऑफ द इनैंशियोमर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट दिस इज द ब्यूटिफुल प्रिंसिपल वेयर द इनैंशियोमर कैन बी सेपरेटेड। सो देखिए प्रिंसिपल क्या है इसका सेपरेशन करने का, तो डायस्टेरियोमर हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये तो हो गई इनैंशियोमर। इनैंशियोमर किसको बोलते हैं हम? कि दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है और वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, और मिरर इमेज होने के बाद लेकिन वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। और डायस्टेरियोमर किसको बोलते हैं हम? डायस्टेरियोमर आर दोज मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं रहते, मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम रहेंगे। अगर एक डायस्टेरियोमर आइसोमर है तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ एटम रहेंगे, दूसरा डायस्टेरियोमर है अगर उसमें उतने नंबर ऑफ एटम रहेंगे, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम रहेंगे। बट जैसे इनैंशियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज रहते, दे डू नॉट इन केस ऑफ डायस्टेरियोमर दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो अगर ये मिक्सचर है रेसिमिक मिक्सचर, तो इनमें से अगर हमें एस सेपरेट करना है, अगर या आर सेपरेट करना है, तो हमें इन दोनों फॉर्म को इनैंशियोमर को डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे भी हम डायस्टेरियोमर में इनको कन्वर्ट करेंगे तो हमको मालूम है कि डायस्टेरियोमर अगर आइसोमर है तो डायस्टेरियोमर आइसोमर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अगर एक डायस्टेरियोमर है वो सॉलिड रह सकता और दूसरा अगर डायस्टेरियोमर है तो वो लिक्विड भी रह सकता। मीन्स बोथ द डायस्टेरियोमर दे डू नॉट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल विच इज यूज्ड टू सेपरेट द enantiomer from their racemic mixture. So what we do in separation of the enantiomer from their racemic mixture? First that racemic mixture, we react that racemic mixture with the chiral reagent. अब chiral reagent मतलब क्या कि हम ये रिएक्शन मिक्सचर को मतलब इस इनैंशियोमरिक मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर को ऐसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे जो कायरल इन नेचर रहेगा। मतलब उस मॉलिक्यूल के कार्बन एटम या कोई भी सेंट्रल एटम है उसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेगा। और ये मॉलिक्यूल अगर इसका सोल्यूशन हमने लिया तो इसमें से अगर हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो ये वाला मॉलिक्यूल इसका सोल्यूशन उस प्लेन पोलराइज लाइट को एक तो लेफ्ट या नहीं तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको बोलेंगे हम कायरल मॉलिक्यूल। सो इट इज़ अ कायरल रिएजेंट। नाउ इट इज़ यूज टू सेपरेट दिस टू इनैंशियोमर फ्रॉम देयर रेसिमिक मिक्सचर. So what we do? First we react the chiral reagent with the racemic mixture, and as that suppose this is the chiral molecule. अब उसका मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन यस है, जैसे कि हमारे रेसिमिक मिक्सचर में एक इनैंशियोमर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन यस है। तो और ये हमने रिएजेंट लिया हुआ है जो हमें इन दोनों को सेपरेट करने में मदद करेगा. सो दिस मॉलिक्यूल इट इज़ अ कायरल रिएजेंट. अब मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन है यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल it will react with the R molecule. It will react with this molecule having R configuration. Again this molecule will react with this molecule having the S configuration. और इनसे पहले स्टेप में हमको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे. R वाला मॉलिक्यूल मीन दिस मॉलिक्यूल हैविंग R configuration will react with this chiral reagent. इससे जो बनेगा ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा जिसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल उसका R configuration और ये वाला chiral reagent उसका S configuration. तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा. अगेन it will react with this another molecule which is present in racemic mixture. तो yes they combine and will form this new molecule. So इस रिएक्शन में हमको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे. एक मिलेगा RS कॉन्फ़िगरेशन जिसमें दो कॉन्फ़िगरेशन है R और S, और दूसरा मॉलिक्यूल हमको मिलेगा जिसमें है दोनों भी मॉलिक्यूल रेसिमिक मिक्सचर में का यस मॉलिक्यूल जिसका कॉन्फ़िगरेशन यस था और कायरल रिएजेंट जिसका कॉन्फ़िगरेशन यस था. ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे और हमको नया मॉलिक्यूल मिलेगा. मतलब ये जो मॉलिक्यूल हमको नया कंपाउंड मिला इसमें यस कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल भी और दूसरा रिएजेंट का भी कायरल रिएजेंट का भी यस कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल है. अब ये जो दो हमको प्रोडक्ट मिले हैं, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस टू प्रोडक्ट आर वाला मॉलिक्यूल यही है, यस वाला मॉलिक्यूल यही है. ये दोनों मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम थे मतलब दोनों इनैंशियोमर थे, यहाँ पे दोनों सेम है. यस
इट विल बी रिमेन सेम, यस इसमें भी वही रिमेन सेम। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है और ये वाला मॉलिक्यूल, बोथ द मॉलिक्यूल दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इसमें जितने नंबर, इस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे, कार्बन रहेंगे, नाइट्रोजन जो भी है, सेम नंबर ऑफ एटम विल बी प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो हम इन दोनों मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि ये दोनों आइसोमर है, लेकिन कौन से वाले, दे आर डायस्टेरियोमर्स। वाई दे आर डायस्टेरियोमर्स? अब इनको डायस्टेरियोमर क्यों कहा? अब मान लो इस मॉलिक्यूल के बीच में अगर मैंने प्लेन रख दिया, मिरर रख दिया, तो एस की इमेज एस की जैसे दिखाई दे रही, लेकिन आर की इमेज आर नहीं दिखाई दे रही। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल आइसोमर तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों की सेम तो है, लेकिन ये एक दूसरे के इनैंशोमर नहीं है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे पेयर को क्या बोलते हैं हम, डायस्टेरियोमर। मतलब जो मिक्सचर था उसमें आर मॉलिक्यूल जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर था, जिसका कॉन्फ़िगरेशन यस था, दोनों की फिजिकल स्टेट एक थी, इन दोनों को हमने सेपरेट करना था, उसको हमने रिएक्ट किया कायरल मॉलिक्यूल के साथ, और पहले स्टेप में हमको ये वाला पहले एक मॉलिक्यूल मिला जिसमें कायरल मॉलिक्यूल जिसका कॉन्फ़िगरेशन यस था, उसने रिएक्ट किया इसके साथ, ये वाला प्रोडक्ट बना, इसने और इसके साथ रिएक्ट किया, ये वाला प्रोडक्ट बना। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारा, इसमें जो दो मॉलिक्यूल बने, ये वाला एक मॉलिक्यूल एंड दिस वन मॉलिक्यूल, दे आर द डायस्टेरियोमर। जैसे ये दोनों थे इनैंशोमर, तो प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद अब ये दोनों बन गए डायस्टेरियोमर। एंड वी नो दैट इन केस ऑफ डायस्टेरियोमर दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अब कैसे रहेंगी, अलग अलग। एक तो रहेगा सॉलिड, मतलब ये ऊपर वाला रह सकता सॉलिड और नीचे वाला रहेगा लिक्विड। सो नेचुरली द टू फिजिकल स्टेट इज फॉर्म इन द बीकर। दो अलग अलग फेज बन गए हैं, एक वाला सॉलिड और एक वाला लिक्विड। एंड नेक्स्ट स्टेप हम इसको क्या करेंगे, इन नेक्स्ट स्टेप सुटेबल रिएजेंट ऐड करेंगे। और इसमें कहा हमें करना क्या है कि आर और एस सेपरेट करने हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें एक सुटेबल और रिएजेंट डालना पड़ेगा, जो कि ये जो वाला हमने यूज़ किया था मॉलिक्यूल, दैट इज़ कायरल रिएजेंट। इन दोनों को इनैंशोमेरिक मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए ये इनके साथ अटैच हुआ। अब सुटेबल रिएजेंट ऐड करने के बाद ये इस कायरल रिएजेंट को सेपरेट कर देगा, एंड फाइनली वी विल गेट these two separated enantiomer. So this method is known as the chemical method. Why? Because the chemical reaction is conducted to separate the enantiomer. So diastereomer, तो the principle क्या है chemical method का, separation of enantiomer, the formation of diastereomer, and these diastereomer they have the different physical property. और कौन कौन सी स्टेप यूज़ करते हैं हम? So step A, treating the racemic mixture, ये racemic mixture विथ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, जैसे ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। एंड दे फॉर्म द डायस्टेरियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट और ये रेसिमिक मिक्सचर, इनका रिएक्शन होकर क्या बनेगा, उनका डायस्टेरियोमर बनेगा। और हमको फाइनली सेकंड स्टेप, डायस्टेरियोमर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब ये जो डायस्टेरियोमर बन गए, ये दोनों वाले, एक मान लो ये वाला था सॉलिड, ये वाला था लिक्विड, एक ही बीकर में है, तो इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं या मैन्युअली सेपरेट कर सकते हैं उसको, या फिर हम क्रोमेटोग्राफिक से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उस बीकर में से दोनों को भी सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक्चुअल मॉलिक्यूल, मान लो ये है मॉलिक्यूल, दिस इज द वन मॉलिक्यूल। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, जस्ट अ सेकंड, now if you observe this molecule, this is the molecule where carbon atom is there at the center, hydrogen atom is attached to it, NH2 is attached to it, CH3 attached to it, and pH group, that is aromatic ring is there. मतलब इस कार्बन एटम को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम कायरल मॉलिक्यूल। ये हुआ कायरल कार्बन एटम सेंट्रल का, और ये कायरल मॉलिक्यूल हुआ, और असिमेट्रिक कार्बन एटम हुआ। तो इसकी अगर मिरर इमेज हमने लिया तो इसके मिरर हमको ऐसे दिखाई देंगी। तो इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है यस, और इसकी मिरर इमेज जो देखेंगे हम, मिरर के सामने इसको अगर रखा तो इसकी मिरर इमेज हमें ऐसे दिखाएंगी। और ये वाला मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर इस पर हमने रखा तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे की इनैंशोमर हुए। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, देख लिए, कार्बन एटम है यहाँ पे, इसमें भी कार्बन एटम, CH3 ग्रुप इज देयर, यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन NH2PH, हाइड्रोजन NH2PH, मतलब दोनों भी मॉलिक्यूल एक दूसरे की क्या है, इनैंशोमर। अब मान लो किसी रिएक्शन में ये दोनों भी मॉलिक्यूल बन गए, तो 1 फिनिल इथिल अमाइन, अगर किसी रिएक्शन में दोनों भी मिक्सचर बन गए हैं तो इक्विमोलर बॉन्ड में रहेंगे दोनों भी।
और इनैंशोमर है इसलिए एक ही फेज़ में रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, नहीं तो लिक्विड रहेंगे दोनों भी, और दोनों को सेपरेट करना आसान नहीं रहेगा। तो जैसे अभी हमने देखा कि अगर ये रीइनैंशोमेरिक मिक्सचर है तो इसको हमें रिएक्ट करना पड़ेगा किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि इस रिएक्शन मिक्सचर में उसी हमने रिएक्ट किया था कायरल रिएजेंट, ये है ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। तो ये वाला जो है यहाँ पे इस रिएक्शन मिक्सचर में से इन दोनों को अगर सेपरेट करना है तो हमें इसे ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट दैट इज़ आर टार्टरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करना होगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे, ये दोनों इनैंशोमर दिस मॉलिक्यूल दैट इज़ आर टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट होंगे, दे विल फॉर्म दिस सॉल्ट। This is the amine, it is basic in nature and this molecule is acidic in nature. तो acid base reaction will takes place is there and salt like molecule will form. तो ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट होगा इस मॉलिक्यूल के साथ, तो ये मॉलिक्यूल और ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा। एंड दिस मॉलिक्यूल अगेन इट विल रिएक्ट विद दिस मॉलिक्यूल, तो दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल, तो ये वाला एक पूरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ है ये वाला एसिड, अगेन NH2 इट इज बेसिक इन नेचर, एसिड बेस रिएक्शन, तो सॉल्ट लाइक प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स when we react this mixture with this tartaric acid which is optically active, then it will react with this one, it will form this product and again it will react with this molecule and again it will form this product। मतलब आफ्टर रिएक्शन होने के बाद इन दोनों की इसके साथ हमको ये वाला मिक्सचर मिलेगा जिसमें ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे। नाउ दीज टू आर द डायस्टेरियोमर, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरे एक दूसरे की क्या है, ये डायस्टेरियोमर, मतलब दोनों की फिजिकल स्टेट अलग रहेंगे। एंड सो दैट एज देयर फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, सो वी कैन इजीली सेपरेट देम बाय डिफरेंट मेथड, बाय मैकेनिकल मेथड, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाय यूजिंग chromatographic method. So this is the one of the most important and reliable method to use or to separate the enantiomer in their individual form from the racemic mixture. And this method is generally used to separate the enantiomer, that is chemical method, is number of time asked in university examination. I hope you understand this one. If you have any query, then you can comment on my YouTube channel. So thank you very much.